हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं एक बेहद ही खास मेहमान, श्री अनिल स्वरूप जी, आईएएस रिटायर्ड, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ कोल एंड एजुकेशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ सर आपका स्टडी आईक्यू पर, और मुझे बहुत खुशी है कि आप आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और अपनी जर्नी से जुड़ी तमाम बातों को हमारे साथ शेयर करेंगे। सर, तो मैं शुरुआत इसी से करना You're the author of book Ethical Dilemmas of Civil Servant. हम उस पे भी कई पहलू पर चर्चा करेंगे, अलग अलग चैप्टर्स जिसमें आपने बहुत ही अपने बताए हैं। बट मैं शुरुआत सबसे पहले इससे करूंगी कि you had a glorious 38 years of service. Civil service is one of the most celebrated service in India. जब आप अपनी जर्नी को देखते हैं, how do you feel? It's the feeling of satisfaction and the expectations that you had before joining the service. Are they in harmony after the retirement? It is a feeling of elation, enormous sense of satisfaction when I look back those 38 years I spent as a civil servant. And that's why in my first book, in the last chapter, I write that if I were to be born again, I'd like to be a civil servant or an IAS officer all over again, because of the enormous opportunities that this service has to offer. And in the second book, Ethical Dilemmas of a Civil Servant, I use this term kick on a number of occasions. And the various occasions where I felt that I was getting Bharat Ratna. What could be better than that? I enjoyed enormously every moment. But to beat it all, post-retirement, I'm enjoying it even more for a variety of reasons. So it's been, God has been very kind to me. So I'm enjoying myself. सर, आपने जैसे बताया कि आपने अपनी बुक में भी लिखा है कि इफ यू आर बोर्न अगेन यू वांट टू बी बोर्न एज अ सिविल सर्वेंट। तो जब हम सबसे पहले बुक को खोलते हैं तो उसमें आपने लिखा है कि सिविल सर्विस, जो सबसे पहली लाइन में उसको फिर से कोट करूंगी, मेक इट हैपन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ज्वाइन तो करते हैं सिविल सर्विस बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ, बट अगर आपकी जर्नी से मेक इट हैपन, अगर मैं इस वर्ड को स्पेसिफाई करूं तो व्हाट इज दैट? सिविल सर्विस एक बहुत आसान सर्विस नहीं है। अगर आप, चूंकि आप पुस्तक का संदर्भ ले रही हैं एथिकल डिलेमास, तो उसमें स्टार्ट एक कपलेट से है, मुख्तसर सी जिंदगी क्या जब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं परिंदे भी बचाने हैं। सो दैट्स द क्विंटेसेंशियल डिलेमा ऑफ अ सिविल सर्वेंट, कि काम आसान नहीं है लेकिन आता बड़ा मजा है उसे करने में। मैंने जो पुस्तक लिखी थी एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट, इसका टाइटल मेकिंग इट हैपन हो सकता था, क्योंकि मेरा ये मानना था, इस पुस्तक को लिखने का एक प्रमुख कारण था। I used to visit Lal Bahadur Shastri National Academy very regularly to interact with officers of various seniorities. So मैंने पाया कि जब कोई व्यक्ति जब सेवा ज्वाइन करता है, when he joins the civil service, he is very enthusiastic. He wants to do a lot many things. But as he goes up the ladder, जैसे जैसे वो वरिष्ठ होता जाता है, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने लगता है और सिनिकल भी हो जाता है, और वो दोषारोपित करता है, he tends to blame the circumstances and the politician for his inability to do things. So the idea of writing this book was to demonstrate and illustrate to civil servants, my colleagues, that you can do a lot. A civil servant can do a lot. An IAS officer can do a phenomenal amount of work. And that is what making it happen is. That how do you go about making things happen in government which an outsider feels that nothing either happens or can happen? My contention in the entire book, through various instances that I have given, I have tried to demonstrate that things can happen. It's not that you'll be successful all the time, but the effort can be made. More often than not, that effort will be successful. There will be occasions when you will fail, but that's how life is. You don't succeed everywhere. So if you make the right effort, if you seek inspiration from the right people, if you follow the right path, you will end up a very happy person, a happy civil servant, and then you would want to be born again as a civil servant. That's a very beautiful explanation that you have given. And since we are talking about the right path, right direction, I would like to talk about, क्योंकि हम अगर सिविल सर्विस की बात करें तो बहुत सारे लोग जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विस की चकाचौंध, if I can put it that way, उसके वजह से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो what should be the right reasons? Because you're talking about the dynamics that civil service offers you, the opportunities, but I want you to illustrate about the right reasons. See, there is no harm in aspiring to be a prominent person. There's no harm in aspiring to hawk some limelight. There's no harm in aspiring to do good work. There's no harm in all that. The question is, one is aspiring to do it, the other is expecting from it. You run into problems if you start expecting.
You aspire is meaning thereby that you are making an effort to reach a particular level, and that everyone should do. There's no harm. I mean, I'm not I'm not in favor of those that say बिल्कुल आप you remain like an ascetic और कुछ सब बिल्कुल एकदम straight line में चलिए. No, it doesn't work that way. Life isn't that way. Life is up and down, and you have to flow along with it. My contention here is very simple. In my book, I don't say what I'm saying is right. Since you have read the book, you would have discovered by now that I say what I did, and I share my experience with the reader, and then let the reader, whoever that person is, decide as to whether that is the right way. That is my way of looking at it, and I think what I did was right, but others may think that it is not the correct way of going about it. Now, why I say that? What I try and demonstrate again in the book is, one, ethical behavior pays. And I have given examples after examples to demonstrate that being ethical is not merely being ideal. Being ethical is being practical. Because if you look at how things have evolved, what we normally don't discuss is that honest officers have succeeded in the civil service, large number of them. And there are large number of dishonest officers who have been caught. I've given examples of 2 chief secretaries in government of UP who were sent behind the bars for being dishonest. So it's not that the dishonest man thrives, which is the normal impression that is given around, or an honest man suffers. Yes, some honest men suffer and a lot of dishonest men also suffer. So what I present in the book is, you have a choice. Unlike otherwise, where you don't have a choice, in the IS you have a choice to follow a particular path, then you have to take a call. Then don't blame the society, the politician or somebody else for paying a price. I've also said that there is a price to be paid either way, whether you are honest or dishonest, very efficient or inefficient. There's a price to be paid. Nothing comes free in this world. But you have a choice to pay the price that you want to pay. I felt in my career that by following an ethical path, I benefited enormously, more so post-retirement. I'm reaping the benefit of the life that I led as a retired officer. In fact, today I tweeted that the true worth of a civil servant gets discovered only after his retirement. True regard or reverence to an officer comes after his retirement, not during service, because then you're occupying a position, so everyone will do salam to you. सब आपको सलाम मारेंगे, आप कुर्सी पे बैठे हैं. मजा तो तब है जब आप कुर्सी पे ना बैठे हो, लोग आपको सलाम करें, लोग आपको रेकन करें. That is something which you earn as a consequence of the investment that you made during the service. Again, the choice is yours. You can make an investment in the money that you may earn. The IS provides enormous opportunity to make money. You can make that money, but then beware. It could be proof costly to you. It may not. Some people are thriving despite being dishonest. As I keep saying, the choice is yours. सर, आप अपनी जर्नी की बात कर रहे हैं, तो आप जब आप भारत दर्शन पे थे ट्रेनिंग के टाइम पे, तो एक वाकया हुआ जिसको आपने अपनी किताब में मेंशन किया है. चैप्टर है स्पॉटलाइट एनीवन. जब शोले मूवी आप लोग ने देखने का प्लान बनाया और वो मूवी सिर्फ आप लोग के लिए हॉल्ट हुई, अगर उस वाकया को आप हमारे साथ शेयर कर सकते. वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था. हम लोग भारत दर्शन पे थे. आईएएस में हम लोग को पूरा भारत दर्शन करते हैं हम लोग. तो भारत दर्शन के लगभग अंतिम छोर पे हम लोग, मुझे याद पड़ता है, हिसार में थे. हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम लोग की ट्रेनिंग हो रही थी. और एक दिन शाम, उस समय सब टेलीविजन वगैरह तो होते नहीं थे, तो हमने सोचा एक दिन मूवी चला जाए. तो हमने जो हमारे वहाँ इंस्ट्रक्टर थे उनको किसी को मेंशन किया कि हम लोग मूवी जाना चाह रहे हैं. कितने लोग? 4-5 लोग. वो एक ही हॉल था, तो मतलब कोई ऐसा नहीं था कि किस हॉल में जा रहे हैं, उसी हॉल में जा रहे थे. तो हमने उसको बताया और फिर शाम को हम लोग जैसे थे वैसे ही उठ के चल दिए मूवी. जब हॉल में पहुंचे तो हमने टिकट लिया और अंदर जाके बैठ गए. काफी टाइम हो गया, मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई और लोग भी बड़े उत्तेजित हो रहे थे कि क्यों नहीं मूवी स्टार्ट हो रही, क्यों नहीं हुई. तो तभी जो एक गेट कीपर होता है उसने बीच में इंटरवीन करके कहा कि साहब कुछ बड़े अधिकारी आने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है, जब वो आ जाएंगे तो मूवी स्टार्ट करेंगे. तो हम लोग कान ठनका कि कौन बड़े अधिकारी आ रहे हैं. थोड़ी देर और इंतजार किया, जब ज्यादा कुछ बवाल होने लगा तो हम लोगों ने सोचा क्या किया जाए, कहीं हम ही लोगों को तो बड़ा अधिकारी मान के पिक्चर तो नहीं रुकी हुई है. तो हम लोग नीचे उतर के गए, बैल्कनी में थे, नीचे उतर के गए मैनेजर के कमरे के बाहर. भीड़ लगी थी, लोग कह रहे थे क्यों नहीं चल रही. तो मैनेजर भी ये कह रहा था कि कुछ आईएएस अफसर आने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है, जब वो आ जाएंगे तब मूवी स्टार्ट करेंगे. तब हम लोग तो वैसे ही कुछ एक आध जना तो पजामा ही पहने हुआ था. हम लोग ऐसे स्थिति में नहीं थे कि वहां बता सकें कि हम ही आईएएस अफसर हैं जिनका इंतजार करा. फिर हमने सोचा अच्छा बता ही देते हैं. फिर हम मैनेजर के पास गए
तो उससे कहा कि भाई देखिए हम ही शायद हैं अफसर जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, उसको विश्वास तो नहीं हुआ कि यही आईएएस अफसर हैं, लेकिन उसने सोचा ठीक है अब जो भी है कम से कम मूवी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी जान बचेगी। तो उसने नमस्कार नमस्कार किया, हम लोगों को बैठा और स्टार्ट कर दी। तो शुरू शुरू में ऐसा अनुभव कई हुए हमें कि कैसे हम नहीं चाहते थे मिसयूज करें अपनी पावर को, लेकिन चूंकि हमने शायद मेंशन कर दिया था हम लोगों ने वहां पर, वो शायद बात मूवी हॉल के मैनेजर तक पहुंच गई थी और वो इंतजार कर रहा था। 1991 का एक वाक्य आपने मेंशन किया जब रथ यात्रा निकली गई थी ऑन डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर बनाने की मांग को लेकर, तो पूरा स्टेट ऑफ अफेयर्स एक स्टेक पे था, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेक पे था। उस समय आप लखीमपुर खीरी के डीएम थे, पूरा स्टेट कर्फ्यू में था सिवाय आपके डिस्ट्रिक्ट के। आपने मेंशन किया है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच डेवलप हुआ जिसकी वजह से यू डिड नॉट नीड टू पुट सम कर्फ्यू and later on you were also awarded with chief minister's special recognition। उसके बारे में आप कुछ जिक्र कर सके? एक तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, मुझे रिवॉर्ड मुलायम सिंह जी ने दिया था, उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे। बाद में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे अपना विशेष सचिव बना दिया। ये भी एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ अपनी किताब में कि ये बहुत फर्क नहीं पड़ता आप इस तरफ है उस तरफ, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो हर प्रकार के लोग आपको चाहेंगे काम कराना। ये भी एक गलत फहमी है लोगों की कि आप अगर ऑनेस्टली काम करेंगे, स्ट्रेट काम करेंगे तो आपको पोस्ट ठीक नहीं मिलेगी। मुझे तो ठीक ठाक पोस्ट मिली, जबकि 38 साल के करियर में मैं किसी नेता के पास नहीं गया किसी सिफारिश के लिए, किसी काम के लिए, बट जब कोई समस्या आती थी तो मुझे बुला लेते थे, तो हम कोशिश करते थे। तो लखीमपुर खीरी में उस समय स्थिति, लखीमपुर खीरी क्या पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से स्थिति थोड़ी गंभीर थी, बिकॉज रथ यात्रा वगैरह निकल रही थी। यहाँ लोगों को जानकारी थी कि ये डीएम साहब कड़क हैं थोड़े, अगर कोई गड़बड़ करेगा उसे बंद कर देंगे। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। मैंने अभी एक रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने हाथरस का दृष्टांत दिया, जेएनयू का दृष्टांत दिया और ये बताने की कोशिश की अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये मैसेज देता है जनसाधारण को कि नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड, एनीवन ट्राइंग टू वायलेट लॉ एंड ऑर्डर शैल बी टेकन टू टास्क, अगर ये मैसेज चला जाए, जैसे हम इकबाल कहते हैं, यूपी में इकबाल अगर बुलंद है सरकार का तो चांसेस नहीं है ज्यादा गड़बड़ होने के। लेकिन इकबाल गड़बड़ हो गया, लोगों को डाउट हो गया कि ये लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, तब प्रॉब्लम फंसती है। अगर लोगों को विश्वास है आप में तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कर्फ्यू ना लगाने का एक प्रमुख कारण ये भी था कि लोगों को पता था गड़बड़ करेंगे ये डीएम साहब अंदर कर देंगे। आपने अगर इससे पहले वाले चैप्टर पढ़े हो तो मेरा पूर्व में भी कुछ ऐसे ही रेपुटेशन बन चुकी थी कि ये नॉनसेंस नहीं टॉलरेट करते। बट वहां हुआ क्या कि एक मर्डर हो गया। तो जो जिला अध्यक्ष थे रूलिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम एक फ्यूनरल प्रोसेशन निकालें। तो मैंने कहा कि अगर फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे तो यहाँ राइट्स हो जाएंगे, जैसे और डिस्ट्रिक्ट्स में हो ही रहे थे। तो मैंने मना किया, नहीं निकालेंगे। तो उन्होंने कहा साहब हम तो जरूर निकालेंगे। मैंने समझाने की कोशिश की, नहीं समझाया तो हमने उनको बंद कर दिया। अब ये आज की तारीख में सोच नहीं सकता कि रूलिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष को आपने बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली शाम तक काफी खलबली मची और शाम को चीफ मिनिस्टर का फोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि डीएम साहब आपने हमारे अध्यक्ष को बंद कर दिया। साहब किया तो है, क्यों किया? तो मैंने उनको समझाया क्यों किया साहब जी, अगर फ्यूनरल प्रोसेशन निकालना चाह रहे थे, निकालेंगे तो बवाल होगा, सरकार आपकी है, आपको नुकसान होगा, उनको छोड़ नहीं सकते। हमने कहा साहब ऐसा कीजिए, या तो आप बात कीजिए उनसे या कोई लखनऊ से बात करे, उनको समझाए कि साहब ये फ्यूनरल प्रोसेशन आपके हित में नहीं है। तो कहा मुख्यमंत्री बहुत संतुष्ट नहीं हो, ही बैंक द फोन डाउन, आई कुड मेक आउट। तो आई टोल्ड माय वाइफ, पूर्व अनुभव था मेरा कि मेरा ट्रांसफर तो हो ही जाएगा, तो तैयार है, ठीक है हो जाएगा। अगले दिन सुबह मुझे फोन आया कि वो जो महाशय थे जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने कह दिया कि वो फ्यूनरल प्रोसेशन नहीं निकाले। मैंने उनको छोड़ दिया, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कुछ था नहीं, छोड़ दिया उनको। 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मुलायम सिंह जी ने, जो कि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे ही अवॉर्डेड मी एज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जबकि मैंने उनके अध्यक्ष को बंद किया था। इससे 7 साल पहले जब मैं हरदोई में था, जिसका भी एक वाकया हमारी किताब में है, वहां मैंने 1984 की बात थी, उस समय इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था और वहां जो रूलिंग पार्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल एमएलए था, वो पीछे लगा हुआ था। ये सब माइनॉरिटीज के दुकानें जला रहे थे और ये कर रहे थे। मुझे इंटेलिजेंस मिली तो मैंने उसके अगेंस्ट एनएसए केस बना दिया। सिर्फ एनएसए केस बनाने पर, निर्णय मुझे नहीं लेना था, निर्णय तो डीएम को लेना था, लेकिन मैंने सिर्फ फाइल भेजी, मेरा ट्रांसफर हो गया वहां से, सिर्फ केस बनाने। उसको अरेस्ट नहीं किया था मैंने, सिर्फ केस बनाया था। यहां मैंने उसको अरेस्ट करके बंद कर दिया था, लेकिन मुझे रिवॉर्ड कर दिया गया।
तो मैं धीरे धीरे मुझे सेवा में समझ में आने लगा कि काम आप जो ठीक समझे वो करिए, उसके बाद रिवॉर्ड मिलना है या पनिशमेंट मिलना है या क्या होना है उसके आपके हाथ में नहीं है। मेरी मदर जब मैं छोटा था तो मुझे सुनाती थी, जो उस समय नहीं समझ में आता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, रिजल्ट क्या होगा आपको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इतने फैक्टर्स वर्क करते हैं रिजल्ट में और उन पर आपको कोई नियंत्रण नहीं है। तो उस चीज को आप कीजिए जिस पर आपका नियंत्रण है। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो फिर तो हम जो ठीक समझते थे करते थे, उसका होगा नहीं। सर अभी आपने जैसे मेंशन किया कि जो ठीक लगे यू डिड दैट एंड यू हैड अ ग्लोरियस, डेफिनेटली एक्सट्रीमली ग्लोरियस करियर। सो जैसे आपने अभी एक इंस्टेंस की बात की, क्विक सेट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमेशा जनता क्यूरियस रहती है कि हाउ एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली वर्क्स। तो अभी जिस इंस्टेंस की हमने बात की उसके पहले वाले चैप्टर के बारे में आप बात कर रहे थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार उस समय चल रहा था, तो अगर उस वाकया को भी आप मेंशन करें, हाउ डिड इट हैपन ऑन द साइट? ऑपरेशन ब्लू स्टार तो के बाद ही का है। उसके बाद जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो सब कई जिलों में ये स्थिति हुई कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोगों को रूलिंग पार्टी के लोग हैरेस कर रहे थे। दिल्ली में भी हुआ, हर जगह हुआ। तो मैं उस समय नया नया था, 1984 की बात है, मुझे 2-2.5 साल हुआ था सेवा में, और आई वांटेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सो आई यूज्ड टू, मैं सोता नहीं था, रात को जीप से अपना घूमते थे शहर में जिससे स्थिति कंट्रोल में आए। बट उसी समय मुझे इंटेलिजेंस मिली कि एक विधायक हैं, एमएलए हैं, बहुत ही पावरफुल एमएलए, वो कई पार्टियों में गए, बाद में मंत्री भी बने, महत्वपूर्ण पदों पर रहे। तो उस समय एमएलए थे, बहुत ही वाज वेरी पावरफुल। तो मेरे पास ये एथिकल डिलेमा हुआ कि मैं इनको अगेंस्ट एक्शन लूं ना लूं। नया नया था, मुझे बहुत क्लियर नहीं था चीजें। बाद में कोई समस्या नहीं होती थी, जैसा मैंने किताब में भी कहा कि शुरू में मुझे डिलेमा होता था, कंफ्यूजन होता था, बाद में कोई डिलेमा नहीं था, बाद में क्लैरिटी थी। बट उस समय थोड़ा आई वाज नॉट श्योर कि मैं ये करूं ना करूं। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं तो केस बनाऊंगा। मैंने एनएसए का केस बना के डीएम को भेज दिया। जब उस विधायक को मालूम पड़ा एमएलए को, तो बड़ा नाराज हुआ, मुझसे नहीं, मतलब अपने साथियों से, और फिर वो लखनऊ चला गया। लखनऊ में उसने मालूम नहीं क्या कहा, मुझे तुरंत लखनऊ बुलाया गया। हरदोई जिला जो है वो करीब 2 घंटे दूरी पर है लखनऊ से। तो मैं गया, गाड़ी बैठ के वहां पहुंच गया। सीनियर अफसर ने मुझसे पूछा, भाई एक तुमने क्या कर दिया? मैंने उनको समझाया कि साहब ये मैंने इस वजह से किया। तो सहमत हुए, हाँ बट किया तो ठीक है। फिर मुझसे बोले, यार ऐसा करो, फाइल वापस ले लो। तो जैसे होता, बड़े लोग बताते हैं, अरे क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, फाइल वापस ले। मैंने कहा साहब निर्णय तो मैंने लिया, लेना नहीं है, निर्णय तो डीएम को लेना है, मैंने सिर्फ फाइल भेजी है, वो मना कर दे कि नहीं होना है। बोले अरे ले लो फाइल वापस। मैंने कहा साहब मेरे लिए फाइल लेना उचित नहीं होगा, अनएथिकल होगा कि मैं फाइल ले लूं। मैंने एक बार भेज दी, आप उस पर ओवर रूल कर दीजिए। तो इस बात पे बातचीत खत्म हुई, मैं अपने जिले में आ गया। आया 24 घंटे मेरा ट्रांसफर हो गया। मैं बहुत रोष में था उस समय, मुझे बहुत गुस्सा आया कि देखिए मैंने सही काम किया और मेरा ट्रांसफर हो गया। धीरे धीरे करके बाद में मुझे ट्रांसफर की भी राजनीति समझ में आने लगी। फिर मैं ट्रांसफर के प्रति इंडिफरेंट हो गया। तो मेरे बहुत ट्रांसफर्स भी नहीं हुए, ऐसा नहीं कि मेरे बहुत सारे ट्रांसफर्स। एक्चुअली मैंने इस किताब में तो नहीं लिखा है, मे बी आगे मैं कभी लिखूं, या एक आध आर्टिकल में मैंने लिखा है कि कई अधिकारी ये समझते हैं कि नेता सब चीज गलत करता है तो हर चीज अपोज करते हैं। मैं भी शुरू में नेताओं को बहुत गाली देता था, मैं कहता था ये नेता सब गड़बड़ है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो उतनी ही गड़बड़ है जितना मैं हूं, वो भी इसी समाज के अंग है, उनका अपना उद्देश्य है, वो अपना कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे नेता हैं जो बड़े अच्छे थे। मैंने जैसे कल्याण सिंह जी के साथ काम किया, मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ काम किया, ऑस्कर फर्नांडिस साहब के साथ काम किया, मैंने प्रकाश जावड़ेकर, ये सब अलग अलग पार्टी के हैं लेकिन बड़े बढ़िया नेता है। मुझे बड़ा मजा आया काम करने में। इसी के साथ साथ और भी ऐसे नेता जिनका मैंने चर्चा अपनी किताब में की है, जो महाभ्रष्ट गड़बड़ नेता थे। तो हर प्रकार का व्यक्ति होता है। तो मैंने धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा, मैं इनका तो कुछ कर नहीं सकता नेताओं का, मैं अपना क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करूं कि मुझे तो काम कराना है इनसे, सरकार का काम कराना, अच्छा काम कराना, मैं कैसे कराऊं। तो जैसे मैंने उसको, एक फ्रेज है मिर्जा गालिब का नाम, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। तो मैंने आईना मलना बंद कर दिया। मैंने सोचा मैं अपना चेहरा कितना ठीक कर लूं जिससे मैं काम निकालता। धीरे धीरे बात समझ में आ गई। तो जैसे कहते हैं कि आदमी धीरे धीरे वाइज भी होता जाता है, एज यू गो अलोंग। अनावश्यक रूप से मैं नहीं भिड़ता था नेता से, क्योंकि मैं एज्यूम नहीं करता था कि हर नेता गड़बड़ है, उसका एक काम गड़बड़ है तो ठीक है नहीं करेंगे। दूसरा मैं ये करता था कि नेता का ये भी अधिकारी समझ नहीं पाते कि नेता हर काम गलत नहीं कहता, कुछ एक आध काम गलत कहेगा, 8-10 गलत कहेगा, बाकी 70-80 तो ठीक कहेगा, वो तो आप तुरंत कीजिए।
अगर आप वो 70-80 काम उसके सही सही कर देंगे, 10-20 काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो करता था, नेता कोई आता था, उसका जेन्युइन काम होता था, तुरंत करता था, तुरंत। तो ये रेपुटेशन थी, काम तुरंत करते हैं। और धीरे धीरे मैंने देखा अपनी सेवा काल में 10-12 साल बाद तो मुझसे गलत काम कहना किसी ने बंद कर दिया। मुझसे कोई कहता ही नहीं था गलत काम। मैं कोल सेक्रेटरी रहा, मैं अलग अलग जगह पर रहा, मुझे किसी ने फोन करके कभी गलत काम को कहा ही नहीं। एक आध ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिनको मैं हाईलाइट करता हूं अलग अलग, बट अदरवाइज कोई नहीं कहता था मुझसे गलत काम। तो आपकी रेपुटेशन, अगर लोगों को पता है कि ये आदमी गलत काम नहीं करता, तो आपसे नहीं कहेगा गलत काम करना। ये नहीं हो सकता कि आप इसका काम गलत कर दें, उसका नहीं करें, ये समस्या आती है। आपने एक बार कहूं, मैंने अभी एक आर्टिकल में अर्थ सत्य का मूवी आई थी बहुत पहले, आपने शायद नहीं देखी होगी। अर्थ सत्य मूवी आई थी जिसमें एक बार वो गलत काम कर देता है तो फिर वो फंस गया, फिर नेता उसको नहीं छोड़ता गलत काम करने, उस गलत काम के आधार पर 10 और गलत काम कराएगा। अब लोग कहते हैं कि आप गलत काम या काम ना कीजिए नेता को, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे तो लेंगे, लेकिन अगर आप एफिशिएंट हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो आपको बुलाएंगे काम। सर, आपने अपनी किताब में एक वाक्य मेंशन किया है रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड। वहां पे एक स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट है जहां पे सभी ऑफिसर्स के नाम लिखे रहते हैं, जहां उन्हें बैठना रहता है। एक जूनियर आईपीएस ऑफिसर ने अपने सीनियर आईपीएस ऑफिसर को अपीज करने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की, बट आपने उसको नहीं ज्यादा कंडेम किया, इस एक्ट को ज्यादा कंडेम नहीं किया, उनको ज्यादा कंडेम किया जो आपके साथ बैठे थे। और जब आपने उसको इनिशिएट किया और कंडेम किया, उसको अपलॉड किया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इनिशिएट नहीं करते, हम वेट करते हैं कि कोई और इनिशिएट करे, और हम एक वॉचफुल स्पेक्टेटर होते हैं। तो इस विषय में आप बता सके यूथ के लिए एक स्पेशल मैसेज के साथ। देखिए, वो स्थिति बड़ी अजीब सी थी। रिपब्लिक डे में बड़ा प्रोटोकॉल से सब बैठते हैं, सबकी सीट्स का नाम होता है, लेबल होता है। तो जो जूनियर एक पुलिस ऑफिसर ने किया अपने सीनियर के लिए, वो शायद उसको खुश करने के लिए किया। मेरे लिए वो इतना बड़ा गुनाह नहीं था। मेरे लिए ज्यादा बड़ा गुनाह उन लोगों का था जिन्होंने मेरी तारीफ की कि तुमने ठीक किया, लेकिन दूर खड़े रहे। उसका कारण बड़ा सिंपल है। वो जो दोनों अधिकारी थे जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, वो आज बड़े अच्छे पदों पर है, बहुत अच्छे पद। एक तो बहुत ही अच्छे पद पर है, काफी नामी गरामी है, क्योंकि उनको पता है कि क्या करें क्या ना करें और किसको खुश करने से क्या हो जाता है। ये भी एक तरीका है काम करने का। ये मैं ये नहीं कहता वो जो कह रहे हैं गलत है या जो करा उन्होंने गलत किया। मेरे विचार से ठीक नहीं किया, अपने विचार से उन्होंने ठीक किया। मेरा ये मानना है कि अगर मेरे सामने कोई गलत काम कर रहा है तो शांत रहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना गुनाह करने वाले का गुनाह है। ये जो आप देखती हैं जो समाज में आज की जो विकृतियां हैं, वो इसी वजह से हैं कि तमाशबीन ज्यादा हैं, उस गलत काम को रोकने वाले कम हैं। आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, वहां पे किसी की हिम्मत नहीं होती गलत काम करने की, क्योंकि उसको पता है कि सोशल प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि उसके बाद उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, तो गलत काम नहीं करेगा। यहां उनको पता है कि मैं अगर पावरफुल हूं तो बाकी तमाशबीन खड़े होकर तमाशा देखेंगे और कोई इंटरवीन नहीं करेगा। ये एक विकृति होती है, हमारे भी समाज की है। यहाँ पे आई कॉल इट सम सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आपको पता है गलत काम हो रहा है, लेकिन आप शांत बैठे हुए हैं। आप इसलिए नहीं आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को कोई नुकसान हो जाए। सो यू डोंट वांट टू स्टिक योर नेक आउट। आज भी समाज में जो जितनी विकृतियां हैं, जैसे मैं बात करता हूँ इंडिविजुअली, लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं हाँ गलत हो रहा है, लेकिन आवाज उठाने को तैयार नहीं। अब अगर आवाज नहीं उठाएंगे गलती के विरुद्ध तो गलती तो होती रहेगी। आप अपने कमरे में बैठकर व्याख्यान देते रहिए कि गलत हो रहा है, आवाज उठाना जरूरी है। So there is a very infamous fact established about India कि जैसे ही एक गवर्नमेंट जाती है, उनके साथ साथ जो पॉलिसीज हैं उनकी बनाई हुई वो भी चली जाती हैं। ऑन कॉन्ट्रारी टू दैट, आपने एक पॉलिसी पे काम किया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, but it got retrieved in successive government which was from a different party. अगर आप इसके बारे में बताएं, and how was it possible and how did you convince the next party which was not earlier in the power to implement it again? मैंने शायद किसी नई पार्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कन्विंस नहीं किया। जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा बनी थी तो एक ही पार्टी थी और वो इम्प्लीमेंट हुई। उस समय चैलेंज थोड़ा दूसरा था। उस योजना को, जो कि केंद्र सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे पार्टी की थी और कुछ स्टेट्स में अलग पार्टी की गवर्नमेंट, तो उनको जाके समझाना कि ये आपके लिए भी हितकर है, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। वो मैंने अपनी किताब में मेंशन किया है। तो इसका उद्देश्य बेसिकली ये था
कि हम उन स्टेट्स को जाके स्थापित करें कि इसको आप पॉलिटिक्स से अलग कर दीजिए, आप इस योजना को कैसे लोग बेनिफिट हो रहे हैं, क्योंकि ये योजना थी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वाज फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जिनके पास ज्यादातर लोग जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता था या तो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे या इतने निरीह हो जाते थे कि कई लोगों की तो मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि ये समस्या थी कि इतना खर्चीला होता हॉस्पिटलाइजेशन कि लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो ये बात समझाना मुख्यमंत्रियों को और मुख्य सचिवों को कि फॉरगेट दी डिफरेंट गवर्नमेंट एट द सेंटर, आपको सोचना है कि आप क्या गरीब आदमी और जो केंद्र सरकार कहती है गरीब आदमी से फर्क तो नहीं, गरीब आदमी तो वही है, उसकी तो कोई वो तो किसी राजनीति में नहीं है। हमें इस स्कीम का बेनिफिट पुअर को करना है, पुअर की कोई क्या कहते हैं कलर नहीं होता, पुअर इज पुअर इज पुअर। तो ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आई, उन्होंने मान लिया। लेकिन समस्या तब आई जब केंद्र में सरकार बदली। जब केंद्र में बदली तो मैं इसमें फिर शायद सरकार को इतना दोषारोपित नहीं करना चाहूंगा जितना सर्टेन सेट ऑफ सिविल सर्वेंट्स को। उन्होंने बढ़ चढ़ के उस योजना का बंटाधार कर दिया। कैसे किया? इस योजना में प्रीमियम देना होता है गवर्नमेंट को, तो प्रीमियम का जो फंड फ्लो था वो चोक कर दिया, प्रीमियम जाना बंद हो गया नीचे। जब प्रीमियम बंद हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला, तो उन्होंने हॉस्पिटल्स का भुगतान बंद कर दिया। हॉस्पिटल्स का भुगतान बंद हो गया तो ट्रीटमेंट बंद हो गया। तो ये करीब 3 साल तक, वर्तमान सरकार एनडीए 1 जब आई थी तो 3 साल तक उन्होंने इसको चोक्ड कर दिया, पूरी स्कीम को चोक रही। 3 साल के बाद, 3 ही साल, हाँ 2018 में, 4 साल के लगभग बाद 2018 में मैं सचिव शिक्षा था, स्कूली शिक्षा, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। तब मेरे पास एक फोन आया पीएमओ से और मुझसे कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर के सामने एक प्रेजेंटेशन कीजिए इस पे हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने कहा साहब मुझसे क्या मतलब, मैं तो एजुकेशन सेक्रेटरी। तो मुझे बताया गया कि काफी प्रयास चल रहा है लेकिन शायद प्राइम मिनिस्टर को समझा नहीं पा रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की महत्ता क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इट नेसेसरी। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं तो हम आ जाएंगे। तो मुझे बताया गया कि भाई पिछले जितने प्रयासों से प्रधानमंत्री जो है वो he doesn't feel good about it, so you be prepared, he might get annoyed with you also. I said ठीक है, मैं तो I was close to retirement, this was I think in March, फरवरी मार्च रहा होगा, और जून में मुझे रिटायर होना था। मैं गया शाम को 6-6:30 बजे प्राइम मिनिस्टर के घर पे। वहां सेक्रेटरी हेल्थ ने पहले प्रेजेंटेशन किया इसी इंश्योरेंस स्कीम पर, और प्रधानमंत्री वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, बट ही टर्न टुवर्ड्स मी, ही सेड अनिल जी आप रहे हैं इसमें इंश्योरेंस में, आपने किया है, आपकी क्या राय? तो मैं करीब 15-20 मिनट बोला, उन्होंने बड़ा ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री बड़े ध्यान से सुनते हैं, सामान्य लोगों को धारणा ये है कि बोलते अच्छा है, बोलते तो है अच्छा, सुनते बहुत अच्छा है, सुना पूरा। और 15-20 मिनट बाद मैंने वही बात कही जो हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे थे, मैंने कोई नई बात नहीं की, अपने तरीके से बताया उनको। तो बोले हाँ आप तो सही कह रहे हैं। और उस दिन फिर ये आयुष्मान भारत का पीएमजेएवाई योजना का आरंभ हुआ। तो वही आरएसबीवाई को थोड़ा सा काफी चेंज करके उसका एम्बिट बढ़ा के उस योजना को अनाउंस किया गया। तो मेरा इसमें प्रमुख अप्रोच ये था कि अगर कोई अच्छी योजना है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको समाप्त करना कठिन होता है, प्रयास हो सकता है। जैसे आप महात्मा गांधी नरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, उसको भी शुरू में समाप्त करने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो स्कीम इतनी बढ़िया है कि वो उसका क्रिटिसिज्म करते 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 अब उसे अपना लिया गया। और कोविड में देखिए सबसे ज्यादा काम उस योजना का आया जब लोगों को आया। तो अगर योजना में बल है, दम है, तो हो सकता है वो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से उसको आरंभ किया गया हो, लेकिन वो सस्टेन कर जाती है। सस्टेन इसलिए कर जाती है कि लोगों को उसका बेनिफिट दिखता है, तो उसका पॉलिटिकल कलर फेड होने लगता है। फिर जो उसका मूल इंपॉर्टेंस है स्कीम की, उसको रिकग्निशन मिलता है। वो चाहे नरेगा का रहा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का रहा हो, और भी योजना है जो कि पहले कई पार्टियां बदली लेकिन योजनाएं चलती रही। थोड़ा माइनर चेंज इधर उधर हुआ लेकिन योजनाएं चलती रही, इसीलिए चली क्योंकि योजना में दम था। So you have been Secretary Education in Government of India, and आप ही के समय new education policy draft हो रही थी, but you were a little hesitant in framing a new policy. Rather, you wanted a strong action plan. But now, since we are going to witness a new education policy being implemented in India, what are your thoughts about it? And do you see it's in the correct direction, the roadmap? I think
National Education Policy announced in 2020 is one of the finest documents on education. It covers almost all aspects of education. It's a fabulous document. But my problem with such policies is that there is no detailed roadmap along with this policy to implement it. I remember when Dr. Kasturirangan came to meet me and he sought my suggestions on the policy because at that point in time it was being framed. He asked me, I said, you are wasting your time. So he was a bit surprised. He said, you all have set up this group and you are telling me that I'm wasting my time. I said that you are framing just a policy. It would be better if you have a clear-cut action plan, clearly outlining what needs to be done, how it will be done, who will do it, by when it will be done. Without this detailed action plan, it will be just, a collection of ideas, excellent ideas. No one will have a clue how it will be implemented. Why? Because when you work out an action plan, you understand the limitations of what you want to be done. Policies, ideas put together in a particular format. But for those ideas to work in India, and I've used this phrase in my book also, for any idea to fructify and sustain, it has to be politically acceptable, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable, judicially tenable, and recently I've added emotionally relatable. This was not at that point in time. Now, why am I mentioning this in the context of education policy? Education policy, the new education policy, is politically acceptable because it has been accepted by the cabinet. Socially desirable, all measures that have been mentioned in the policies are by and large very good. It is technologically feasible. I don't see any problem in technology, but the problem arises thereafter. Financially viable, meaning thereby, is there money available to implement the provisions of the policy? Now, the policy says that it would require 6% of GDP for the implementation of the policy, and that should be the allocation that should be done. The highest allocation so far since independence has been 3.1%, and as luck would have it, from 2014 onwards, the actual allocation for education has actually been coming down as a percentage of GDP, except 1 year when I pushed it, 17, 18, it went up, and then again it came down. So if that be the case, how are you going to implement these ideas? So until you are clear in your mind how the policy can be implemented and who will implement it, what is the big deal in having this wonderful document? So what you have now is a wonderful policy. Everyone is struggling to implement it because there's no money to back it. As I keep saying, there are wonderful, wonderful ideas in the policy, but there is the requisite amount of money that is required to back that policy is not available. So as you're mentioning about different policies, and we have definitely glorious policies, but somewhere or the other we lack either in the terms of money or infrastructure that we are not able to implement. कई बार ऐसा होता है कि कई सिनेरियोज यूपीएससी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो हाउ एस्पिरेंट्स मस्ट बी answering such questions when it comes to framing of the new policy, implementing about the new policy. I'm just deriving this question from the answer that you gave. See, while answering in the UPSC interview, and at that stage and age, an individual has to be optimistic, has to look at it positively, has to look at what can be done in a difficult situation. So if I were to answer a question about national education policy, I would say that it is one of the finest policies. If there is a shortage of money, I'd like to structure the implementation aspects in a manner to take up those aspects of the policies which do not require a lot of money. Start implementing them. And as and when money becomes available, implement the remaining part of the policy. In fact, I told Dr. Kasturirangan also that why don't you segment the policy in a manner that if you have 10% of the money available, these are the priorities. Fix your priorities. That as per the jitni utne pav phasariye jitni chadar hoye, तो आप बात पूरी कह सकते हैं, आप कहिए कि ये होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए हमें 100 रुपए के बजाय 20 रुपए ही मिल रहे हैं, तो 20 रुपए में हम क्या करेंगे वो आप डिफाइन कर दीजिए, so that there's no confusion on that front. Right now the problem is people are not clear कि कौन सा implement करना, कौन सा सब चीज सब जना implement नहीं. It doesn't work that way. So as an interviewee, if someone is interviewing me, I'll tell them that it's a wonderful policy. So you have to have a positive approach. It's one of the most comprehensive policies. There are aspects of national education policy that can be implemented without too much of financial intervention. For example, teacher is the pivot of school education in India. All the recommendations regarding teachers in the policy do not require too much financial intervention. So those aspects can be taken care of immediately, and one should work out a strategy
so as to fit in the financial availability within the financial availability that I have, and then start implementing the policy. This will also convince people that there is a need for more money, because whatever money is available is being well spent. It's very important, because mere money doesn't help you. I mean, even if 6% becomes available, if it is not appropriately spent, it will go down the drain, as is true of a number of schemes in the government. So the best would be to demonstrate that whatever little money that is available is being put to best use. There are outcomes that are available. Once that happens, more money will become available. Let me take you back to the Rashtriya Swasthya Bima Yojana scheme. In the beginning, I had problems in getting money for the scheme. But once this scheme started moving, I distinctly remember after 2 years, the Joint Secretary Budget used to ring me up one day before the budget, and he used to ask me, how much do you want? And I used to tell him this much, and that used to be included in the budget. So, as I write in the end of my book, खुद ही कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. Meaning thereby, if you can evolve yourself or that scheme, that it gets to be reckoned with, then money also comes to it. But you can't say that I want money without demonstrating that you are able to deliver it on the ground. That's a key factor. Also, I'll take some more insights about the interview. जब भी situational questions पूछे जाते हैं, as you mentioned, optimistic रहना है, but if board varies their perspective, then how aspirants must be reacting to that situation? See, it's very simple. If a youngster is not positive in his approach, then when will he be positive? I can understand at a very senior level, people tend to become cynical. I'm not trying to justify it, but it is understandable. But if a youngster becomes cynical, then how is he going to inspire others? I mean, civil servant has to get things done on the ground. If he himself is diffident, and if he himself feels unsure, if he's not sure that he'll be able to deliver, how will he inspire his entire team to do work? So the aspirant has to convey a message that, yes, circumstances and problems are not in my control, but I can attempt to find a solution. Now, one thing has to be understood by all those that are answering questions, that they are not supposed to provide solutions to all the problems that I mentioned to them. The interview board is not looking at solutions that you provide. The interview board is looking at the approach that you adopt. It may or may not lead to a solution, but if your approach is positive, the chances are that the solution will be found. For example, in coal, when I was coal secretary, situation was terrible. But we had such positive approach that we started finding solutions. And, trust begets trust, confidence begets confidence. And gradually you start finding solutions to the problem. So much so that we used to joke in my room that give us the Kashmir problem, we just might be able to find solutions to it. So the issue is whether you look at a problem with a view to finding solutions, and that is what the board is trying to assess in an individual who's sitting there. What is his approach? That is, whether he says, sir, ये तो इतनी problem है, तो बड़ा मुश्किल है इसका कोई solution निकालना. और वो 4 समस्याएं और गिना दी, एक उन्होंने दी, 4 और ऐड कर दी उसमें. Instead of saying that, yes, sir, that's a problem, but let's try and understand why is that problem. If I were to answer that question, and I did that in my career, understand the why of a problem. Once you understand the why of a problem, you will start finding some solutions. But if you don't understand the problem and look at it from the surface, again, going back to coal, everyone thought that scams were a problem. We went into the why of it. Why scams? Because there was shortage of coal. If there was no shortage of coal, there would be no scams. There will be no maramari for coal blocks. Then why is there shortage of coal? Because India has 300 billion tons of coal and we require only 800 million tons per annum. Then, because this reason, and then you go further down. If you start questioning the why of a problem, you will come to a level where you start finding answers. Again, you may not find all the answers, but this approach, how you analyze a problem with a view to finding solution, is something that the board is looking at. I'm sure sir, बहुत सारे लोगों को समझ में भी आया होगा कि क्या approach रखना है when they're going for an interview, and what specifically UPSC board is looking for, the qualities. Thank you so much, sir. Since you raised this question, let me explain this, and I have a full-fledged presentation on that. The board is not assessing your knowledge. Your knowledge has been assessed in the written paper. The board is assessing, and that's why it's called a personality test, not an interview. They are assessing your personality in terms of how positive you are, how analytical you are, how logical you are. This is what they're looking at. They are not seeking straight answers in the sense of yes and no. It doesn't work that way.
because they know that administration is not yes and no, it's a shades of gray. And how do you wade through those troubled waters is something which they are looking at. That's why if they give you a situation, and since you mentioned my book, Ethical Dilemmas of Civil Servant, if you read those case studies, which I also use for Ethics GS4, if you use those case studies, at the end of most of the chapters, I have not said what I've said, done is correct. I've even questioned myself. End of each chapter, I've questioned myself. So it's not a question that there are perfect answers available. To human situations, to administrative situations, there are no perfect answers. But again, it's your approach towards finding solution that is what that matters. Thank you so much, sir, for sharing all these insights and joining us in this extremely enthusiastic session. मुझे लगता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को अपनी तैयारी में एक नया आईना मिलेगा, नया डायरेक्शन मिलेगा. सर, हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स, सजेशन सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि if you are enjoying the journey towards the civil service exam, the chances are that you'll be able to make it. Don't take it as a drudgery. Enjoy the journey of preparation. I mean, I recall my days when I was preparing. I used to enjoy every day, every moment. Why? Because as you learn, you get this feeling you know more. And as you know more, that brings in a sense of enjoyment to you, number one. Number two, though it is a competition, don't enter or get into a competitive spirit. You have your strengths, others have their strengths. So don't compare yourself with others. Build on your strengths and don't bother about what others are. You should do what you can. If you can do that, you will have enormous amount of confidence in yourself, because confidence is the key. And third, you must understand, as I mentioned during your interaction with you, that you don't have any control over results. Results will, I mean, whether you qualify or not, there are many factors that will determine whether you qualify or not. But you have enormous control over what you can. So focus on what you can rather than be worried about which is not in your control. So focus on that. If you follow this, and of course, seek guidance, and of course, to get something, you have to sacrifice something. You have to, as I keep saying, eat, drink, and sleep civil service for you to qualify. And if you do that, and if you focus on improving your communication skills, no matter what you have here, but you are unable to write it on the piece of paper that comes in the examination, it won't help you improve your communication skills. Thank you so much, sir. And ending with a very positive note, that focus on what you can rather than being worried all the time. And also start finding why of a problem. You will eventually end up finding some of the solutions to that problem. Thank you so much, sir. And the entire team wishes you good health.